اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فعال اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج محبت پانے کے لیے پتلے والا ایک عمل پیش کرنے والا ہوں۔ کپڑے کا پتلا آپ نے بنانا ہے، یہ آپ کو بازار سے بھی مل جائے گا، گھوڑیا کی دکان سے، ورنہ اگر آپ اس کو خود بنانا چاہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس طرح کا آپ نے پتلا بنانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو 3 سوئیاں چاہیے۔ یہ جو کپڑے سینے والی سوئیاں ہوتی ہیں اس قسم کی، یہ دیکھو میں آپ کو قریب کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس قسم کی 3 سوئیاں آپ کو چاہیے، اور کچھ عبارت ہے پڑھنے والی جو میں آپ کے سامنے یہاں لکھوں گا اور آپ کو عمل کا پورا طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ بحال ہو سکے۔ دوستو، یہ محبت کا سخت ترین عمل ہے، سخت ترین منتر ہے۔ صرف 3 دن میں تڑپ کر محبوب حاضر ہوگا۔ صرف 3 دن میں محبوب کی کال بھی آپ کے پاس آ جائے گی۔ ایسا محبوب جو کبھی آپ کی کال کو سنتا بھی نہیں، اٹھاتا بھی نہیں، وہ خود آپ کو کال کرے گا۔ صرف ایک بار آپ اس عمل کو آزما کر دیکھیں۔ دوستو، لکھنے والی عبارت میں یہاں پہلے آپ کو لکھ کر بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کا سارا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کیسے آپ نے کرنا ہے۔ دوستو، یہ لکھنے والی عبارت ایسے ہے کہ اس کو آپ نے کہیں بھی لکھنا نہیں ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس پتلے کے اوپر جو پتلا آپ کے پاس ہوگا، آپ نے بنایا ہوگا یا آپ نے خریدا ہوگا، اس کے اوپر آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے۔ اس کی ایک مخصوص تعداد ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ چلیے پہلے میں عبارت کو لکھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یا بدو ہو، یہ پہلا لفظ ہو گیا۔ اس کے بعد لکھنا ہے آپ نے تبو، یہ تبو ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے دو ہو، یعنی تبو دو ہو، یا بدو ہو، تبو دو ہو، ہو من البدو ہو، ہو من البدو ہے، اس طرح سے۔ اس کے بعد فی، میں یہ الگ سے بھی آپ کے لکھ کر دے دوں گا، فل بدو ہو، فل بدو ہے، بدو ہے کا، بدو ہے کا، یا بدو۔ یہ آپ کے صرف پڑھنے کے لیے ہے۔ اس کے نیچے پھر آپ نے نام لینے ہیں اپنا، اپنے محبوب کا۔ میں الہد، الہد، شدیدن، شدیدہ۔ اب یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے چیز، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا بدو ہو، تبو دو ہے، ہو من البدو ہے، فل بدو ہے، بدو ہے کا، یا بدو، یا بدو ہو، تبو دو ہے، ہو من البدو ہے، فل بدو ہے، بدو ہے کا، یا بدو۔ یہ وہ عبارت ہے جو اصل میں لکھنی ہے۔ اور یہ الحب کے بعد یہاں آپ اپنا نام، اپنے محبوب کا نام لکھیں گے، اور اگر محبوب مرد ہے تو اس کا نام لکھنے کے بعد بن لکھیں گے، پھر آگے اس کی والدہ کا نام لکھیں گے، اور اگر خاتون ہے خاتون کا نام لکھا جائے گا، پھر بن کی بجائے بنتے لکھنا ہوگا، پھر آگے اس کی والدہ کا نام، اور الحب کے بعد یہاں آپ اپنا نام لکھو گے۔ آپ مرد ہو
तो अपना नाम लिखोगे, फिर बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखोगे। अगर आप खातून हो, अपना नाम लिखने के बाद आप बिनते लिखेंगी, बिनते लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अब ये जो इबारत नामों के हद तक है, आखिर तक ये सारी पढ़ने की इबारत है। अब ये जो इबारत है मुकम्मल, ये पुतले में आपको जो काम करना है वो करने के बाद आपने इस इबारत को पढ़ना है। फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब ये रहा आपके पास पुतला, ये पुतला आपने ले लेना है, इतने ही साइज का हो, छोटा बड़ा भी होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी बाजू और चेहरा और जिस्म, टांगें वगैरह साफ नजर आ रही हैं। अब ये है आपके पास सुइयाँ, आपने इस सुई में से एक सुई निकालनी है और यही जो इबारत मैंने आपके सामने लिखी है, या बुद्धू हो तुबदू हो तबूदू हो, या बुद्धू हो तबूदू हो मिनल बुद्धू है फिल बुद्धू है बुद्धू है का या बुद्धू हो। इसको आपने 11 मरतबा इस सुई पर पढ़ना है और आपने इसको इसके माथे पे लगाना है, यानी जो दिमाग वाली जगह होती है वहाँ आपने इसको पेवस्त कर देना है सुई को। अपने हाथ को भी बचाना है कि आपका हाथ ना जख्मी हो जाए। इसको बस ऐसा नहीं है कि आर पार करना है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चिबो देना है। ये अब आप देख रहे हैं कि एक सुई इसके अंदर हमने लगा दी है। उसके बाद आपने दूसरी सुई लेनी है। दूसरी सुई को लेने के बाद इस सुई पर आपने इसी इबारत को जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, मैं फिर आपको सुना देता हूँ। या बुद्धू हो तबूदू हो मिनल बुद्धू है फिर बुद्धू है का या बुद्धू। इसको पढ़ने के बाद आपने इस सुई, दूसरी सुई को पुतले के दिल के मकाम पे पेस्ट करना है, जो दिल का मकाम होता है। अब ये लेफ्ट साइड है उसकी पुतले की और यहाँ दिल का मकाम ये है तकरीबन। इस जगह पे आप इसको दबा देंगे, थोड़ा सा पेवस कर देंगे, ये लग जाएगा। और उसके बाद आप इसको फिर निकालेंगे तीसरी सुई को। तीसरी सुई आपको चाहिए और तीसरी सुई जो है इसके ऊपर भी ऐसे ही आपने 3 मरतबा इस इबारत को पढ़ना है। और याद रहे कि जितनी मरतबा आपने पढ़ना है, ये जो नाम आपने नीचे लिखे हैं ये नाम आपने लेने हैं। हर मरतबा ये नाम आप पुकारेंगे। जो नाम आपने यहाँ लिखे हैं, अपना नाम भी, अपने महबूब का नाम भी, ये सारे नाम आप हर 3 मरतबा ये पुकारेंगे। 3 मरतबा ये इबारत पढ़ेंगे और 3 ही मरतबा नाम पुकारेंगे। सुई पर दम करेंगे और सुइयों को लगाते जाएंगे। 3 सुइयाँ आपने लगानी है, 2 आप लगा चुके हैं। तीसरी सुई पर 3 मरतबा ये इबारत नामों समेत पढ़ने के बाद सुई पर दम करके, तो ये नाफ की जगह है जहाँ नाफ होती है इंसान की, इस नाफ वाली जगह पे आप लगा दें। ये तीनों सुइयाँ अब आपके पास लग चुकी हैं और 3 दिन तक आपने इस पुतले को अपने पास महफूज रखना है। यानी ये सुइयाँ आपने निकालनी नहीं है, 3 दिन तक सुइयों को आपने नहीं निकालना, अपने पास महफूज रखना है। अब ये आपके पास मुकम्मल हो गया काम जो आपने करना था, जो वो सारा हो गया मुकम्मल। अब ये जब आप इसको लगा चुके हैं तो फिर आप अपने अलग अलग कमरे में अलग जगह पर बैठ जाएंगे। अब इस इबारत का आपने विर्द करना है 100 मरतबा। 100 मरतबा इसका एक टाइम आप बना लेंगे, रात का टाइम बना लें, दिन का बना लें, जिस वक्त आपके पास टाइम हो उस टाइम पे आपने ये पुतले को सामने रखने के बाद इसी इबारत को 100 मरतबा पढ़ना है नामों के साथ। या बुद्धू हो तबूदू हो मिनल बुद्धू है फिर बुद्धू है का या बुद्धू। इस इबारत को 100 मरतबा पढ़ना है और साथ में नाम भी लेने हैं। आपको जो तरतीब में बता चुका हूँ उसी तरतीब से आप नाम लेंगे। 100 मरतबा आपने ये पढ़ना है। उसके बाद इस पुतले पर दम करना है, फिर इसको संभाल कर रख देना है। दूसरे दिन उसी वक्त फिर आपने इस पुतले को निकालना है और उसके ऊपर इसी तरह 100 मरतबा आपने इस इबारत को पढ़ना है नामों समेत और पुतले पर दम करना है, फिर संभाल देना है। तीसरे दिन फिर आपने इसको उठाना है और उसके ऊपर उसी तरह 100 मरतबा आप इस इबारत को पढ़ेंगे, नामों के साथ पढ़ेंगे और इस पुतले पर दम करेंगे। अब आपका पढ़ाई वाला काम खत्म हो गया। अब आप इस पुतले को कब्रिस्तान ले जाएंगे और कब्रिस्तान में किसी भी कब्र के करीब आप इसको दफन कर देंगे। जब इसको दफन कर चुकेंगे तो उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद एक 1.25 किलो बर्फी आप रखेंगे, जो मिठाई होती है बर्फी, और 1.25 किलो गोश्त आपने रखना है बकरे का। 1.25 किलो बर्फी और 1.25 किलो गोश्त, ये रखने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट जाएंगे। आपका काम, आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा।
इसके बाद आपने कुछ नहीं करना। और आपको एक और बात बता दूं कि मिठाई और गोश्त जो है, अगर आपके पास गुंजाइश इतनी ज़्यादा नहीं है, आप पाव भी ले सकते हो, यानी सवा पाव तकरीबन होना चाहिए, 1.25 किलो नहीं तो सवा पाव आप ले लें। 1.25 पाव गोश्त ले लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1.25 पाव बकरे का गोश्त, 1.25 पाव बर्फी मिठाई, यानी मिठाई आप मिक्स नहीं लेनी, सिर्फ बर्फी ही लेनी है। और इस बर्फी को आप लेके आप रख देंगे। तो ये देखेंगे, आपको मुकम्मल तौर पर फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ, भारत में लिखी हुई आपको दिखा दूंगा अलग भी। तो ये आपने इस तरह से इसको लिखना है, इस तरह से बनाना है, इस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों, आज का अमल हमारा मुकम्मल हो गया। मुझे यकीन है कि इस अमल के करने के बाद आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि जायज़ काम के लिए कीजिएगा, नाजायज़ के लिए ना कीजिएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें दूर फरमाए और आपको आसानियाँ अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।